Hello everyone, I'm Neha Sharma, Assistant Professor of Electronics and Communication Engineering Department. So today we will discuss that what is flip-flop and the different types of flip-flops. What are the operations of the different types of flip-flop? So as we have already discussed that what is flip-flop? Flip-flop is basically sequential logic circuit which has two stable state. One is Q and second one is Q bar. If Q is equal to 1, then we get Q bar is equal to 0. And if Q is equal to 0, then Q bar is equal to 1. So here SRH can be designed using NAND gate and NOR gate. हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे SRH वर्क करती है. हम SRH को NAND गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड NOR गेट से भी इम्प्लीमेंट करते हैं. S means set and R is for reset. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनलिटी देखेंगे. दैट इज SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप. Flip flops in the flip flop latches are transparent because any changes in the input is seen at the output immediately. This causes synchronization problem. So for the synchronization problem, latches generally used flip flop that can respond only on the specific time of intervals. So there are different types of flip flops are available like RS flip flop, JK flip flop, D flip flop, and T flip flop. So as we have already discussed SRH using NAND gate when this when S is equal to 0 and R is equal to 1. ओके, तो यहाँ पर हमको क्या आउटपुट मिलेगा? Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0. इसका मतलब यहाँ पर हमको कौन सा आउटपुट मिलेगा? सेट आउटपुट. In the next case, when S is 1 and R is 1. When S is 1 and R is 1. So in this case, Q is equal to 1 and Q bar is 0. So this condition is known as no change conditions. When S is 1 and R is 0. So in this case, we get Q is equal to 0 and Q bar is equal to 1. This is known as reset condition क्योंकि हम लोगों को Q की वैल्यू 0 मिल रही है. And when S is equal to 1 and R is equal to 1. So in this case, we get the same output. When S is equal to 0 and R is equal to 0. So Q and Q bar has same output, that is 1. So this condition is known as indeterminate conditions. So we will try to remove the indeterminate conditions. SRH with enables, as we have already discussed कि जब हम SRH के आगे हम दो NAND गेट यूज कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा SR फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पर हमने जो यूज करके रखी वो क्लॉक यूज करके रखी है. तो जब S की वैल्यू 0 होगी, हम इसको सेट फ्लिप फ्लॉप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब S की वैल्यू 0 होगी तो Q 0 मिलेगा and when S is 1 then Q will be 1. नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज D फ्लिप फ्लॉप जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप. तो डेटा फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने इनडायरेक्टली SR फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ही डिजाइन किया है D फ्लिप फ्लॉप को. जब S is equal to D होगा, when S is D और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है R, D का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमने किस में पास कर दिया? R में पास कर दिया. तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या है? R बार के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? अभी हमको पता है जब S इज इक्वल टू 0 था तो Q की वैल्यू हमको क्या मिल रही थी? 0 मिल रही थी, मतलब हमको रिसेट मिल रहा था. एंड व्हेन S इज इक्वल टू हाई देन Q इज इक्वल टू हाई. तो सिमिलरली जब D इज इक्वल टू 0 होगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 0. एंड व्हेन D इज इक्वल टू 1 देन Q की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? हाई मिलेगी. तो इसीलिए हम D फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. एंड डेटा फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड इन द मेमोरी units. So we will try to remove the problem when S is equal to R, S is equal to 1 and R is equal to 1. So S is equal to 1 and R is equal to 1. This problem can be avoided using the D flip-flop. So this is the truth table of the D flip-flop. Here is D input. We are getting the two output Q and Q bar. When D is equal to 0, when D is equal to 0, यदि हमको Q की वैल्यू 0 है तो Qn प्लस 1 0 ही मिलेगा, चाहे पास्ट वैल्यू कुछ भी हो, 0 1 हो, बट वी आर गेटिंग द 0 आउटपुट.
This is known as reset output. And when d is equal to 1, when d is equal to 1, then here we are getting Q is high. चाहे लास्ट टाइम में क्यू एन की वैल्यू 0 थी या 1 थी, हमको हमेशा प्रेजेंट आउटपुट हमको प्रेजेंट इनपुट ही मिलेगा। मतलब जब डी हम 1 देंगे तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा, और जब डी की वैल्यू 0 रहेगी तो हमको आउटपुट 0 मिलेगा। तो D flip-flop simply stores the value on its D input at the clock transition. The previous value stored. Qn has no effect unlike other flip-flop. It simply acts as a simply memory or latch. The most widely used flip-flop. It is simple to build and design. सो जब भी हमको रजिस्टर डिजाइन करना होता है तो हम रजिस्टर डिजाइन करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, क्योंकि हमको मेमोरी में ऐसा डिवाइस चाहिए कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं हमको आउटपुट में वही मिले, इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप जनरली प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन इज जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जे जो रहेगा वो किसकी तरह काम करता है, एस की तरह। यार जे इज इक्वल टू एस जब हम, और के जो रहेगा वो किसकी तरह काम कर रहा है, आर की तरह काम कर रहा है। बस हमने जेके फ्लिप फ्लॉप और आर एस फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या रख के रखा है कि हमने क्यू बार का आउटपुट को हमने जे के इनपुट से कनेक्ट करके रखा है, और क्यू की वैल्यू क्यू है, क्यू के आउटपुट को हमने किससे कनेक्ट करके रखा है, के से कनेक्ट करके रखा है। ऐसे क्यों करा है हमको, क्योंकि हमको पता है एस इज इक्वल टू 1 था और आर इज इक्वल टू 1 था, तो हमारी कौन सी कंडीशन आ रही थी, हमारी कंडीशन आ रही थी इनडिटर्मिनेट कंडीशंस। तो इनडिटर्मिनेट कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। सो व्हेन जे इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0, सो हियर वी गेट द सेम आउटपुट। मतलब जब क्यू एन की वैल्यू 0 है तो क्यू एन प्लस 1 0 मिलेगा। Qn plus 1 is known as next state and Qn is known as present state. Present state is nothing but present output. 0, 0, if Qn is 1, then Qn plus 1 is 1. So this condition is known as no change conditions. J is equal to 0 and K is equal to 1. Qn की वैल्यू 0 है, but here we get 0th output. So this condition is known as reset output. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब J 0 होता है, जब J 0 है तब यहाँ पर ये हमको हमेशा कौन सा आउटपुट मिलेगा, रिसेट आउटपुट। मतलब Q हमेशा 0 ही मिलेगा। When J is equal to 1, जब J हाई होगा, जब J हाई है, K 0 है, तो हमको कौन सा आउटपुट मिलेगा, हमेशा हमको Q की वैल्यू हाई मिलेगी। इसको हम बोलते हैं सेट आउटपुट। ये देखिए Qn प्लस 1 इट विल ऑलवेज हाई, चाहे पास्ट आउटपुट आपका Qn की वैल्यू 0 थी या 1 थी। जब J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है, तो हमको कौन सा आउटपुट मिल रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज टॉगल कंडीशन। मतलब Qn की वैल्यू 0 है तो Qn प्लस 1 क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा, और जब Qn की वैल्यू 1 है तो हमको Qn प्लस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉगल कंडीशंस। तो हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप में हमको जे इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 पर हमको क्या मिल रहा था, इनडिटर्मिनेट कंडीशन मिल रहा था। तो इनडिटर्मिनेट कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, हमने यूज किया है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में कौन सी कंडीशन आ रही है, जब जे 1 है और के 1 है तो हमको कौन सी कंडीशन मिल रही है, टॉगल कंडीशन मिल रही है। तो टॉगल कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप जो यूज करते हैं, that flip flop is known as master slave flip flop। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप को हमने डिजाइन किया है जे के फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, जब जे और के दोनों को हम कैस्केड कर देंगे एंड इट इज कनेक्टेड टू द टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसको हम बोलेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। तो हमने टी फ्लिप फ्लॉप को कैसे डिजाइन किया, यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होता है, दो आउटपुट होंगे क्यू और क्यू बार। Here J and K both are cascaded and both are cascaded to the single input that is known as T flip flop। तो यहाँ पर हमारा T flip flop है, दिस इज नोन एज T flip flop। यहाँ पर हमने नॉर लैच यूज करके रखी है। Q सेम कॉन्सेप्ट है, Q को हमने कनेक्ट करके रखा है फर्स्ट एंड गेट से, और Q बार को हमने कनेक्ट करके रखा है सेकेंड एंड गेट से। सो T वहां पर हमको जे और के मिल रहा था जब जे की वैल्यू 0 थी, जब जे की वैल्यू 0 थी तो हमको आउटपुट 0 मिल रहा था। तो हियर हमको सेम मिल रहा है, जब जे की वैल्यू 0 मतलब टी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमको क्यू एन की वैल्यू इतनी 0 है तो क्यू एन प्लस 1 0 ही मिलेगा, और टी की वैल्यू 0 है मतलब क्यू एन की वैल्यू 1 है तो हमको आउटपुट 1 ही मिलेगा। मतलब इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, नो चेंज कंडीशंस। ठीक है,
देखिए यहाँ पर भी जे की वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू 0 थी, तो हमको कौन सी कंडीशन मिल रही थी? नो चेंज कंडीशंस। यहाँ पर भी हमको नो चेंज कंडीशन मिलेगी। व्हेन जे इज इक्वल टू 1 था, के इज इक्वल टू 1 मतलब टी इज इक्वल टू 1 है, तो क्यू एन हमको क्या मिल रहा था? 0 1 मिल रहा था। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? क्यू एन प्लस 1 1 0। इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? टॉगल कंडीशंस। तो टॉगल कंडीशंस के लिए यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप की जो इक्वेशंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, वो होगी टी टी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस टी बार into Qn. This is the characteristic equations of the T flip-flop. So this type of flip-flop is rarely bought as a dedicated device. You can make a T flip-flop from a D flip-flop. हम एक flip-flop से कोई सा भी दूसरा flip-flop डिजाइन कर सकते हैं. Thank you.